Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our drama evening. This is the Indian Social Club, the Bengali wing. For this coming year, this is our first major presentation. We've had a few small functions, and I'd like to take this opportunity of welcoming His Excellency Mr. Inderjeet Singh Rathore and Mrs. Amrita Rathore. Give them a big hand. Today's evening has been termed as a variety entertainment in the program, but it essentially is a drama evening. We are reproducing one drama which we had presented last year. This is a drama we did in Hindi in the 50th centenary celebrations, where all the cultural groups were asked to present one item. We're doing it, and I was very keen, and I mentioned to His Excellency, unfortunately I had to leave before the interval last time and he couldn't see this play. So for the sake of all our members, and in particular His Excellency, we are doing it again. It's a play in Hindi, written by one of our members, Mr. Swapan Chakravarti, based on a very interesting scene, and we look forward to all seeing it. I'll now ask Mr. Dr. Shelly Chaudhary to come and introduce the evening. Dr. Shelly. Your Excellency, the Ambassador of India and his lady wife, Mrs. Rathore, ladies and gentlemen, I think I am in a curious dilemma, because if it is a drama evening, then I have no business to be here. But there is something more to this evening than mere drama. I don't know why Bhaskar didn't mention it, because we are also in a way celebrating the birthday of Tagore, which is falling day after tomorrow, 9th. And which is incidentally, very few days earlier than that of mine, if that means anything to you. Now today, it is in the fitness of things I tell few words about Tagore. All of you know about Tagore. He was a poet, he was a musician, he was a social reformer, he was a school teacher, he was a founder of a university, he was a painter and what not. But there are a few things we don't know about Tagore, is that the manifolded interest which he had, and in all those percepts, he was well ahead of the time. In fact, in other words, he used to always catch time by the forelock. So I'll give you a few examples. Please bear with me, because I think they are getting dressed up, so I think I can take some time. Now first, let us start with cinema. As you know, Tagore was born in a particular society which was dominated by Brahma Samaj, very Puritan, and for them, going to cinema or going to theatre means going to dogs. At that particular point of time, in 1925, when cinema was just coming out of its infancy into a virile art form, Tagore had remarkable ideas about cinema, futuristic ideas about cinema. And though, of course, at that time there were great directors already, Griffith was there, Stroheim was there, and 1925 saw the appearance of Battleship Potemkin. But at that point of time, on a request from a Bengali stage artist, Murari Bhaduri, Tagore wrote about cinema. I quote, "As in politics, so in art, the aim is independence. Every art has to try to redeem itself from the bondage of some other art which is throttling it. After all, what is the quintessence of cinema? A cinema is nothing but flux of image. And if music can achieve profundity on the cadence of a melody, then why not this motive form be considered to be a distinct aesthetic experience?" Unquote. Mind you, it was 1926. So what Tagore was suggesting at that time, he was advocating the birth or creation of an abstract cinema, which 5 years later Salvador Dali and Buñuel did, La Chienne and the Loup. Now this is the way he tried to catch time by the forelock. After cinema, let us go to environment. Now today we all know the importance of protecting the environment. We know the need for avoiding deforestation. In 1927, Tagore wrote a poem, "Oh God, give me back the forest and take away the city." Because he knew at that time that cities were getting too big for their boots, and that
would be detracting the quality of our life. And not only that, what he did in practice, he started a ceremony, almost a sacramental ceremony in his university called Briksharopan. Number 2, that means he was again catching time by the forelock. Today only in Times of Woman I saw Barton Russell also advised this thing, but I have checked it, he was 10 years later than Tagore. I'm not comparing them, but what I'm saying, the Tagore always used to catch time by the forelock. Third, a very interesting subject, I think it is going to raise eyebrows, family planning. Now, in 1925, the then International Authority on Family Planning, Sanger Brown, came to India to advocate birth control methods in India. Mahatma Gandhi said, no, I don't support family planning. He went to Tagore. Tagore wrote an article in International Birth Control Review, quote, it will be futile to wait for men to improve their nature and allow the children to be born and die of neglect. It is better to let them be unborn than be born and be allowed to die of neglect, unquote. So mind you, again, he is catching time by the forelock. Fourthly, about his concept of God. Now, we know, all poets are metaphysical in certain ways, and Tagore was a mystic poet. But there was a very peculiarity about his mysticism. Now, mystics always feel at one with God. But Tagore's contention was that God was meaningless without the devotee. Now this challenge to God, only Tagore, and I have recently discovered that there was another person also threw at God. Tagore wrote in one of his poems that, oh God, if I didn't love thee, your existence would have been meaningless. And one German poet around that time wrote, Mit mir verlässt, win den Sinn. Mit mir verlässt, win den Sinn. That means, oh God, if you lose me, what you are going to do? And that was Rainald Maria Rilke. Now I am not trying to compare, I don't want to imply that Tagore took it off from Rilke or Rilke copied it from Tagore. But all I wanted to say that these were the two voices who had the similar opinion about God, and this was unique even by present standard. The Pandits, philosophists call it neo-Hegelianism and whatnot, but we are not going into that. And the final question, is Tagore relevant today? Now these questions have been asked because I think we Bengalis always try to throw Tagore as a missile to others, just to show that he belongs to us. But is Tagore relevant for the rest of the world? I really don't know. You have to give me the answer. But I will give you one example, one incident. The year was 1919, the French front in the First World War. There was a young poet fighting for his country, surrounded by enemy, and he was dying. He knew that he was going to be killed. His name was Wilfred Wren. All of you who are students of English literature have read his poems. He was a pacifist poet, and he wrote against war. And when he died from his belongings, his mother found a notebook. And in that, there was one poem in English written. It said, quote, on this day of my departure, I would like to let it be known that for all I have received and for all I have seen is beyond compare. It is a poem by Tagore which says, Jabar dine ei kothati janiye jete chai, ami ja dekhechi ja peyechi tulona tar nai. Now his mother sent this poem to Tagore with this note. Tagore wrote his mother back that don't worry, your son is not going to die. Poets never die. They remain immortal in the memory of people. So ladies and gentlemen, I think like Tagore, we also can say, not only on the day when we leave Muscat, but also when we live this life, that for all that we have received and all that we have seen is beyond compare. Thank you.
Sanjay Mukherjee, who sacrificed his yesterdays for our today. Throughout the history of the world, such selfless revolutionaries have given up their lives so that their country, their compatriots, could see the light of freedom. It is this supreme sacrifice which marks them as the martyrs of history. In celebrating the 50th year of our independence, we thought we would pay our homage to a person whose name might be fictitious, but whose reality is unquestionable. These are people who are strewn in the history of the world, and it is for them we dedicate our play this evening. We don't mind dying so that you may live forever. Thank you. नए रास्ते, हजारों दुकानें। एक जमाने में ये पवन गांव एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। पूरे दिन में 4-5 गाड़ियां आती थी और अभी जैसे एक नई दुनिया। घर में आज कोई नहीं है। विनय, सीता बाहर गए हैं। गोखले मेमोरियल क्लब में आज आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। क्लब प्रेसिडेंट चावला साहब ने मुझे मुख्य अतिथि होने के लिए काफ़ी अनुरोध किया। मैंने ना कर दिया। क्यों जाऊं? मैं नहीं मानती मैंने ऐसा कोई महान काम किया है। मातृभूमि के लिए कोई भी काम महान नहीं होता। वो तो एक कर्तव्य था, सिर्फ एक कर्तव्य। रानी बुआ, रानी बुआ। कौन? पूनम। रानी बुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे क्या होगा बेटे, बस ऐसे ही सोच रही थी। तुम सोच नहीं रही थी, तुम डायरी लिख रही थी। मुझे सब मालूम है बुआ, तुम हर दिन डायरी लिखती हो। देखो, एक दिन में चुपके से तुम्हारी डायरी पढ़ लूंगी। नहीं बेटे, दूसरे का डायरी पढ़ना क्या ठीक बात है? फिर बताओ ना बुआ, तुम रोज अपनी डायरी में क्या लिखती हो और किसके बारे में लिखती हो? I know it. You have got a secret boyfriend, है ना बुआ? पागली कहेगी, मैं तुझ जैसी सुंदर थोड़ी ना हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड रहेगा। अच्छा, एक बात बता, तू आज फंक्शन में नहीं गई? देखो बुआ, तुम बात मत टालो। हाँ प्लीज बताओ ना, तुम क्या लिखती हो और किसके बारे में लिखती हो? तुम तो कहती हो कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ।
जान है। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? फिर बताओ ना बुआ, प्लीज। आओ तुम यहाँ बैठो। हाँ, अब बताओ। क्या बताओ बेटे? पहले मुझे ये बताओ कि तुम हर दिन अपनी डायरी में क्या लिखती हो? अरे पगली, डायरी तो डायरी है। तुझे मालूम है पिछले 52 साल का हर दिन हर पल कैद है इस डायरी में। तुम्हें सच बताऊं बुआ, हाँ? कि मैं क्यों तुम्हारा डायरी पढ़ना चाहती थी? क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि तुमने शादी क्यों नहीं की। ये कौन सी बड़ी बात है? तुझे मालूम है ऐसे कई लाखों लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की। देखो बुआ, अब मैं बच्ची नहीं रही। तुम देखने में इतनी सुंदर थी, पढ़ने लिखने में इतनी अच्छी थी, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया था? नहीं रे। फिर तो मुझे मालूम है, सिर्फ हमारी देखभाल के लिए तुमने शादी नहीं की। नहीं पूनम बेटे, नहीं। मुझे किसी का इंतजार है। इंतजार है? हाँ। अभी भी? हाँ, क्योंकि वो बता के गया था वापस आएगा। उसने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था मुझे। कौन? कौन रानी बुआ? संजय मुखर्जी। संजय मुखर्जी? वो कौन था? कौन? बस तू और मुझ जैसा एक आम आदमी। देखो बुआ, जिसके इंतजार में तुमने 60 साल बिता दिए, वो आम आदमी तो नहीं हो सकता। बताओ ना बुआ, वो तुमसे प्यार करता था, है ना? मालूम नहीं रे, बस इतना जानती हूँ कि उसे प्रेम था अपने देश से, अपनी मातृभूमि से। बहुत प्यार, बहुत प्यार। देश के हर कोने में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। पिताजी स्टेशन मास्टर थे। स्टेशन के बगल में ही हमारा क्वार्टर था। अभी भी याद है, वो दिन था 16 दिसंबर 1940। पिताजी नाइट ड्यूटी पर थे। घर में भैया, माँ और मैं। देखता हूँ। क्या हुआ? अरे रानी, तू क्यों उठाई? जा इन्हें देख। कौन है? टाइम क्या हुआ माँ? अरे देखा नहीं रे, 1 या 1:30 बजे होंगे। कौन है अभी? अरे कौन आया? कौन आया? क्या चाहिए आपको? हाँ? क्या चाहिए आपको? अपना भय पागल है। I'm not going to harm you. আমায় কিছু খেতে দেবেন? আর 4 दिन हो गए কিছু খাইনি। रानी तू प्लीज गिव मी सम फूड। विनय, ये क्या बोल रहा है रे? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? प्लीज, व्हाट डू यू वांट? प्लीज गिव मी सम फूड। भीषण খিদে পেয়েছে। আজ 3 दिन হলো কিছু। प्लीज गिव मी सम फूड। देखो, आउट। चलो बाहर चलो। भैया सुन ना,
लगता है उसको भूख लगी है। नॉनसेंस! आधी रात जबरदस्ती किसी के घर में घुस आया? हाँ? चलिए चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। हाँ माँ, क्या ये सचमुच भूख के मारे इधर आ गया है? आ गया तो आ गया, बस अब चलिए। अरे नहीं, चलो देखो, अगर ऐसे नहीं मानोगे ना तो धक्के मार के निकाल देंगे। चलो माँ, ऐसे नहीं बोलते बेटे। क्या आपको खाना चाहिए? 4-3 गोलों की चुका ही नहीं। रानी देखना अंदर रसोई में रोटी होगी शायद, जा देख। हाँ हाँ। माँ तुम क्या कर रही हो ये? तुम जब सचमुच तुम इसको क्या खाना दोगी? चोर डाकू कुछ भी हो सकता है ये। अरे पागल, चोर होता तो सबको जगा के एक भिखारी की तरह खाना थोड़ी मांगता ये। सुनो, तुम्हारा घर किधर है? हेलो। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, घर किधर तुम्हारा? घर तो बड़ा नगर, कोलकाता। ये लो, खाना खा लो और खाना खा के चले जाना। हाँ বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। I am not going to harm you. जल्दी खा लो और चलो। विनय, ऐसे नहीं बोलते बेटे। देखना सच में कितनी भूख लगी इसे। माँ तुमको मैं जानता हूँ, हो सके तो तुम भिखारी को भी अपने हाथ से खाना खिलाओगे। तुम नहीं जानती हो माँ, ये लोग वो देखो खाना हो गया, अभी सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलो यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। अरे बाप रे माँ, क्या हुआ? तेज बुखार है। আমি ঠিক চলে যাব, আপনারা ভয় পাবেন। আমি চলে যাব মা, আমি गिर जाएगा। माँ क्या करूं? बाप रे, इतना तेज बुखार। विनय, तू एक काम कर, इसे इधर ही सोने दे। हाँ और तू जाके वो बाहर वाले कमरे में सो जाना। ठीक है ठीक है। नाइट ड्यूटी करके पिताजी घर आए। माँ ने पिताजी को रात की घटना बताई। पिताजी अच्छे मूड में थे। सुन के हंस पड़े और बोले, ऐसी माँ हो तो हर दिन एक नया बेटा घर आएगा। मगर वो आदमी कलकत्ते से आया है ये सुनकर पिताजी चौंक गए। विनय भैया को उसे जगाने के लिए कहा। कमजोरी और बुखार के कारण वो गहरी नींद में था। ओ लड़ले, ओ बंगाली बाबू, हेलो, चलिए उठिए उठिए। हेलो, क्या लाऊं आपके लिए? अभी चाय या दूध? अरे क्यों काम कर रहे हो? बीमार है बेचारा। अरे विनय, तुम्हारी माँ तो सारी दुनिया को बीमार सोचती जी पिताजी जी। तो ये है तुम्हारा दूसरा बेटा। नमस्कार। Oh my God! ये क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ? जल्दी जल्दी क्या हुआ? जल्दी सोना चाहिए। क्या हुआ? जल्दी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जल्दी करो ना। ठीक है लेकिन सुनो, कल का न्यूज़पेपर ले आओ। जी पिताजी। कुछ तो बताओ क्या हुआ? ये लीजिए ये लो। क्या हुआ? जो सोचा था वही। ये देखो, जानते हो ये कौन है? कौन है ये? और पुलिस को पता भी चल गया कि ये पवन गांव आया हुआ है। कल रात स्टेशन में कम से कम 50 पुलिस आए हुए थे सिर्फ इसी के खोज में। अरे क्या करें? और तुम उसको इस घर में पनाह दे दी? अरे पनाह नहीं दी मैंने, भूख के मारे जबरदस्ती घुस आया अंदर। बहुत बुखार भी था उससे तब। हाँ पिताजी बहुत बीमार था, एकदम बेहोश गिर पड़ा था।
पढ़ते नहीं हो? शौर्य सेन का नाम सुना है? हाँ? बंगाल का फ्रीडम फाइटर विनय भैया को जो अंग्रेज सरकार को सारी हिला कर रख दिया है। कमजोरी और बुखार के कारण ये संजय मुखर्जी नींद में था। उसी का दाहिना हाथ है। क्या बोल रहे हो तुम? और सुनो, हे भगवान, और सुनो, फ्यूजिटिव जानते हो? अंग्रेज का जेल तोड़कर भागा है इसने। 10,000 रुपए इसके सर पर इनाम है। अभी मैं विनय को बोलती हूँ कि इसे बाहर निकाल। हाँ। अरे पागल हो गई हो का? चारों ओर पुलिस खड़ी हुई है। हे भगवान। विनय जी सुनो। जी पिताजी। तुम एक काम कर, जाके जी पिताजी राय साहब को हाँ जल्दी बुला लेना। जी बोलना हाँ बहुत जरूरी काम है। ठीक है ठीक है। और रानी जी पिताजी। सुनो, किसी को ये बात पता ना पड़े। हाँ मगर पाई आएगी अभी। अरे उसे कह देना। हाँ कह देना तुम्हारा भाई गोपाल इलाहाबाद से आया हुआ था। हाँ जाओ जाओ ठीक है चलिए। जी अभी और रानी और सुनो, आज तुम कॉलेज मत जाना। और सुनो, घर में किसी को अंदर आने देना। और वो जो तुम ट्यूशन करने जाती हो शीला के घर, वहां पर भी मत जाना। सुनो, रानी को उसके मामा के घर भेज दो। अरे नहीं, ये लोग तो चोर और बदमाश नहीं है। आजादी के जंग में हिस्सा ले ली और अंग्रेज के दुश्मन बन गए। मगर उसका भी तो घर होगा, माँ बाप होंगे। हाँ है ना, देश ही इनका माँ बाप भाई बहन सब कुछ है, सब कुछ। विनय भैया ने आकर बोला, राय अंकल घर पर नहीं है। हम लोग सब डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं हैरान हो रही थी ये सोच के, ऐसी कौन सी ताकत है उस दुबले से संजय मुखर्जी में, जिसके बल पर उसने अंग्रेजों की जेल तोड़ दी। ऐसा कौन सा शस्त्र है उसके पास जिसके कारण सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है। शाम को भी राय अंकल नहीं आए। मालूम पड़ा 2 दिन के लिए ड्यूटी पे बाहर गए हैं। पिताजी और भी घबरा गए। लग रहा था हम लोग सब एक ऐसे नाव पर सवार हैं जो कभी भी डूब सकती है। संजय मुखर्जी को शायद पता चल गया था, हम लोग उसके बारे में सब कुछ जान गए हैं। पिताजी ने ये तय किया कि राय अंकल के आने तक उसे यहीं छुपा के रखना है। मालूम नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था। माँ उसे खाना देने गई, मैं भी साथ गई। बेटे, उठ बेटे, खाना खा लो। रानी, पानी लाना। हाँ। घर में कौन है तुम्हारे? हाँ है कोलकाता है, बड़ानगरे। नहीं, घर में कौन है? माँ बाप। মা আছে, একটা বোনও আছে। অনেক দিন দেখিনি তাদের। I have not seen them for a long time. तुम्हें क्या मालूम बेटे, तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी। माँ, हाँ देखो कैसे खाना बना है। आपको चम्मच चाहिए? না না ঠিক আছে। बेटे, बेटे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? তেমন কিছু না, ব্যথা। मैं देखती हूँ। संजय तुम खाओ, खाना खाओ, मैं देखती हूँ। हाँ खाना खाओ तुम। चावल दूं? চাवল? আমরা এটাকে ভাত বলি। मालूम है मुझे, भात चाहिए? না না আর খাবো না। खबेन खबेन, देखा बंगाली बोल सकती हूँ मैं। I understand Hindi, but not much. आप
सूर्य सेन को जानते हैं? সূর্য সেন? কে বলেছে? কে বলেছে আপনাকে সূর্য সেনের কথা? Who told you about সূর্য সেন? Who told you? अरे आप तो ऐसे घबरा गए जैसे मैं पुलिस के इन्फॉर्मर हूँ। अरे बैठिए बैठिए, खाना तो खाइए। रानी इधर आ बेटे, इधर आ। संजय तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। रानी वो शीला की मौसी आई है। उसे आने क्यों दिया? क्या करे बेटी, बोलती है तुझसे काम है, तू देख लेना बेटी। हाँ संभाल लेना। हे भगवान। रानी, ओ रानी, ओ मौसी, आइए आइए। कैसी है आप? शीला कैसी है? वो ठीक है बेटी, बच्चों को लेकर परेशान है। मेरे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मालूम नहीं बेटी, भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। ये रानी, यहाँ पर कौन खाना खा रहा था रे? माँ, उड़द की दाल। खाना खाना मैं खा रही थी मौसी, मैं खा रही थी खाना। मगर मौसी, आप इस समय कुछ काम था क्या? अरे देख, मैं तो भूल ही गई। ये ले शीला ने भेजी है ट्यूशन के पैसे। हाँ रानी, तेरे घर में कोई आया है क्या? घर में नहीं तो क्यों? ऐसे ही कल तेरी बाहर वाले कमरे में मैंने बत्ती देखी, तो सोचा जरूर कोई तेरे घर में मेहमान आया होगा। मेहमान? ओहो, समझ गई। मेरे कॉलेज की एक दोस्त आई थी, हम दोनों बैठे थे उधर। मौसी एक काम करो, ये लो, ये रखो। इसकी क्या जरूरत थी बेटी? रखिए ना मौसी, पान खा लेना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, पवन गांव की दो चीज दुनिया में मशहूर है, पवन गांव का पान और हमारी सीता मौसी। नहीं रे रानी, अब वो पवन गांव नहीं रहा। चारों ओर कितने पुलिस हैं, मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। पुलिस किधर? बेटी तुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। हाँ, मेरे तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। बेटी सावधानी से रहना। अच्छा चलती हूँ माँ, चलती। गरम कर दूं? ना ना, আমি আর খাবো না। I know I have put all of you in a big mess. हाँ, वो तो है, मगर हम सब कौन होते हैं आपके लिए? कुछ भी तो नहीं। नहीं, I mean, it is not like that. It is like that. मालूम है आपको? Do you know? किसी ने अगर आपको इधर देख लिया तो क्या हो सकता है? I know. किंतु हमारे ये लड़ाई। मुझे नहीं चाहिए कोई लड़ाई, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ ये आजादी और लड़ाई के बारे में। You must. You must. I ask you a simple question. The night I came to this house, your brother wanted to throw me out of this place. Why? Because ये हमारा घर है। Exactly. Exactly the same way. এই দেশ আমাদের মাতৃভূমি। This is our motherland. And nothing is more important than that. ना আমি ना अपनी। हाँ, वो तो आप कहेंगे। आपको क्या मालूम कैसे गुजारे हमने ये पिछले 3 दिन। आपके लिए मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। आपकी वजह से हम लोग 3 दिन से सोए नहीं। पिताजी पागल
আমার জন্য? You think I'm doing all this, taking all this pain for my benefit? 5 दिन, 5 days I have traveled across the Bengal border without having a grain of food. I left my college, my family. 3 বছর, 3 years I have not seen them. My mother, my sister. They took me to jail. You know why? Because I love my country. Because I wanted freedom for my motherland. And look what they have done to me. One after another, they have plucked my fingernails. Look at it. Look. Oh no. पवन गांव में रहने से हमें खबर ही नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है। संजय से ही मालूम पड़ा कि वो अकेला नहीं है। उस जैसे हजारों नौजवान देश के हर कोने से लड़ रहे थे। वो कहा करते थे कि आज़ादी आएगी। अजीब सी एक कशिश थी उसकी आवाज़ में। उन्होंने एक बंगाली कविता सुनाई मुझे। मैं पूरा तो नहीं समझी, मगर जितना जाना उसका सारांश था, आज़ादी तुम्हारे लिए पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। आज़ादी तुम्हारे लिए हंसती खेलती सकीना बीवी विधवा हो गई। मजदूर रामविलास को उम्र कैद हो गई। आज़ादी तुम्हारे लिए उनकी बेटी मुनिया एक एक दिन गिन रही है। आज़ादी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है हमने। अब तो तुमको आना ही पड़ेगा, तुमको आना ही पड़ेगा। आइए राय साहब, मैंने विनय को भेजा था। हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने, मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। तुम्हें मालूम है यहाँ घर घर छानबीन चल रही है। शुक्र करो कि तुम्हारा रिकॉर्ड काफी अच्छा है, नहीं तो इतना दिन में। खैर, मैंने इंस्पेक्टर कपूर के घर गया था, वो घर पे नहीं थे। क्या आप उनको सब बता देंगे? और नहीं तो क्या। इंस्पेक्टर कपूर अगर संजय को गिरफ्तार किया तो उनका तो प्रमोशन समझो पक्का। सो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। और सुनो, वी आर गोइंग टू फ्रेम हिम दिस वे। 16 दिसंबर रात को संजय ने तुम्हारे घर जबरदस्ती घुस आया। तुम लोगों ने चाहा भी तो पुलिस को खबर कर नहीं पाई, क्योंकि संजय ने तुम्हारे बच्चे को हॉस्टेज बनाकर रखा है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी। ओके, रेस्ट आई विल हैंडल विद इंस्पेक्टर कपूर। मगर इसमें अगर मगर कुछ नहीं है रमेश। यू हैव गिवन शेल्टर टू ए फ्यूजिटिव। अंग्रेज पुलिस पागल की तरह ढूंढ रही है उसको। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अपनी नौकरी तो भूल जाओ। 10 साल की जेल से तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। और वो संजय मुखर्जी को? अरे उसका तो ट्रायल भी नहीं होगा, सीधा दे देंगे फांसी के ऊपर। क्या बात कर रहे हैं राय साहब? उसने ऐसा कौन सा जुल्म किया? अंग्रेज के विपक्ष में गया है, ये कोई कम जुल्म है भाभी? राय साहब, क्या और कोई रास्ता नहीं है? तुम्हें क्या लगता है रमेश, मैंने कुछ सोचा नहीं? क्या मुझे अच्छा लगेगा संजय जैसा एक महान देशभक्त को वो करप्ट कपूर के हवाले करने में? बट वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस। राय साहब, अगर संजय को रात में छुपाकर हम लोग... नो वे। सिराजपुर बस स्टॉप तक हर एक मोड़ पे पुलिस की चौकी लगी है। कुछ सोचिए ना राय साहब, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है। हमारी वजह से अगर उसे फांसी हो गई तो... नहीं, वो मेरे विनय की उम्र का है राय साहब। भाभी धीरज रखिए, आपका दर्द का मुझे पूरा एहसास है, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है ना।
जरा सोचिए, अगर रमेश जेल गया तो विनय की नौकरी, रानी बिटिया की पढ़ाई, ये सब का क्या होगा? आपको शायद मालूम नहीं है, रानी बेटिया हमारी पवन गांव की नाज है। बच्चा बच्चा जानता है उसको। हाँ, एक रास्ता तो है। नो फॉरगेट इट। काफी खतरा है उसमें। बताइए ना राय साहब, बताइए। राय साहब थोड़ा कोशिश तो करके देखें। रमेश तो इधर आना, भाभी आप भी आइए। Now it is up to you. रानी को मनाना तुम्हारा काम है रमेश। अगर सफल हुए, nothing like it. But I will say it again. You are taking a great risk. अजीब सी एक मोड़ पे खड़ी थी मैं, जिस जोड़े में हर जवान लड़की अपने आप को देखने का सपना देखती है, वही जोड़ा मुझे दिया गया एक नाटक के लिए। दूल्हा दुल्हन बनके संजय को सिराजपुर बस स्टॉप तक छोड़ के आना होगा। संजय एक ही बार में राजी हो गया। उसकी आंखों में शायद आजाद मातृभूमि के सपने के अलावा और कुछ भी नहीं था, और मैं अपने आप को तैयार कर रही थी ऐसे एक नाटक के लिए जिसका अंत किसी को भी मालूम नहीं था, न मुझे, न माँ को, न पिताजी को, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। रानी, रानी, रानी जल्दी कर बेटे, बेटे जल्दी कर। घबरा रही हो? नहीं तो नहीं, रानी जल्दी कर बेटे। भगवान क्या होगा? आ रही हूँ माँ। हाँ बेटी जल्दी आ। नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, पिताजी मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटी? क्यों नहीं होगा? देख बेटी, अंग्रेजों की गुलामी में मैंने सारी जिंदगी बिता दी, चाह भी तो कुछ नहीं कर पाया। डर गया था मैं, डर गया था। बस तुम्ही लोगों का सबका ख्याल था मुझे, मगर तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। सोच बेटी, ये काम तू ना मेरे लिए, ना अपने लिए, ना ये संजय मुखर्जी के लिए कर रही है। बस बेटी, अपने देश के लिए ये काम कर दे बेटी। बोल, करेगी ना तू? बोल बोल बेटी, करेगी ना? देख बेटा, सावधानी से जाना। हाँ, सावधानी से जाना। अरे संजय को तो देखो, बिल्कुल राजकुमार बन गया। बेटी कुछ नहीं होगा, जा संजय को बस स्टेशन तक पहुंचकर जल्दी वापस आना। जा बेटी। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी ना कि हमने कोशिश की
एक एक पल एक एक साल जैसा लंबा था। रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी थी। हमारी गाड़ी को भी रोका गया, मगर ज़्यादा पूछताछ नहीं की, जाने दिया। सिराजपुर बस स्टॉप को छोड़कर चले आए हम। खतरे से बाहर आ गए। गाड़ी से उतर के पैदल चल रहे थे। मुझे मालूम था कि जुदाई का पल नज़दीक आ गया। मालूम नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि कुछ दूर और साथ चले हम, कुछ दूर और, कुछ दूर और। बस এবার আমি চলে যাব। मालूम है मुझे। आप वापस तो आएंगे ना? जरूर, নিশ্চয়ই আসবো। আর কদিন পরেই আসবে স্বাধীনতা। তোমাকে আসতেই হবে। তোমাকে পাবার জন্য স্বাধীনতা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছি। এবার তোমাকে আসতেই হবে। You have to come. You have to come. और आप? আমিও আসবো। Once the freedom comes, I will also come back. Promise? Promise. আমি ঠিক ফেরত আসবো। আমি ঠিক ফেরত আসবো। I promise. আমি ঠিক ফেরত আসবো। আমি ঠিক ফেরত আসবো। Once the freedom comes, I will come back. আমি ঠিক ফেরত আসবো। আমি ঠিক ফেরত আসবো। हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन, महीने, साल गुजर गए, लेकिन संजय नहीं आया। लेकिन उसने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि आज़ादी मिलने पर जरूर वापस आएगा। हाँ, वो तो किया था। फिर वो आया क्यों नहीं? क्या मालूम बेटे, शायद जो आजाद हिंदुस्तान का सपना लेके वो दूर चला गया था, वो अभी तक आया नहीं होगा। मगर मुझे यकीन है वो एक दिन आएगा, जरूर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा।